Good day, students. Today is our lecture number 12 of our course Total Quality Management, and in that today we are going to be studying about organization. Now, an organization are not static entities. They exist only so long as they fulfill a useful purpose. So, organizations जो हैं वो बेसिकली एक मुसलसल रहने वाली चीज़ नहीं है, बट दे वुड जस्ट वहाँ तक ही एग्जिस्ट करते हैं जहाँ तक इनका पर्पस फुलफिल हो रहा हो. नाउ दे इन देयर एनवायरनमेंट आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज, एंड टू अडॉप्ट अ बायोलॉजिकल एनालॉजी ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव अ लाइफ साइकिल. सो एनवायरनमेंट इनका जो है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस का वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज में होते हैं. दे आर ऑलवेज चेंजिंग और अडॉप्टिंग समथिंग न्यू और चेंजिंग देयर होल perspective of the way they're going to be running things. So all institutions would then be considered to have a life cycle. Now the organizational life or development cycle has four main stages. So organization life जो है and developmental cycle, चार stages में हम उसको define कर सकते हैं, ठीक है. Now ये चार stages कौन सी हैं? That's one. These are formation, growth, maturity, and lastly a stage that can lead either to decline and decay or renewal and revitalization. So सबसे पहले formation है उसमें, ठीक है, growth है, maturity है, और एक आखिरी ऐसा कॉन्सेप्ट है इस स्टेज का, डेवलपमेंटल साइकिल का, जो या तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पे ले जाता है या फिर इट गोज इन द ऑपोजिट एंड वुड लाइक गो इनटू डिक्लाइन एंड डिके, मीनिंग के इट वुड बी गोइंग रॉन्ग समवेयर. नाउ एन ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ can depend on all of these four points, because now when you're the growth would come with an organization if they are successful. Then they would be reaching maturity also, and the last stage, if we consider about it now, the developmental cycle is the same for educational institutions as for any other organization. So developmental cycle जो एक है वो educational institutions के लिए भी वैसा ही है जैसे किसी और organization के लिए होगा, ठीक है. And they have to go through the same four stages also, especially now that education operates in a more deregulated and market environment, ठीक है. सो अब स्पेशली एजुकेशन को हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो एजुकेशन में डेवलपमेंटल साइकिल किस तरह काम कर रहा है कि वो नाउ एट दिस पॉइंट अब मार्केट एनवायरनमेंट ऐसी हो गई है कि कॉम्पिटिशन्स इतनी हो गई है, एंड देयर आर सो मेनी स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज दैट आर कंपीटिंग विद ईच अदर, कि वो एक मार्केट एनवायरनमेंट बन गया. नाउ ईच स्टेज इन द लाइफ साइकिल हैज इट्स ओन स्पेशल चैलेंजेस एंड अ फेलियर टू मीट देम कैन लीड टू डिजास्टर. सो हर स्टेज का अपना लाइफ साइकिल है, ठीक है, और उस लाइफ साइकिल के अपने अपने चैलेंजेस हैं, ठीक है, अपनी चीज़ें जिन पे पॉइंट्स हैं जिनको मीट करना है, और अगर उनमें से कोई सा भी आप अचीव नहीं कर पाते तो देन दैट वुड लीड टू डिजास्टर और failure. So at each stage an institution must change, adapt and develop. So हर stage के ऊपर institution को develop होना है, change होना है, ठीक है, और नए चीज़ों की तरफ adapt होना है. Now TQM, Total Quality Management, with its powerful ingredients of long-term strategic planning and the involvement of staff in continuous improvement, provides the means of facing up to the challenges at each stage. So TQM, Total Quality Management, how does it work? Because it's a powerful ingredient, ये long term strategic planning के base के ऊपर चलता है, और इसमें continuously staff and workers, they are working for the improvement of their program and for their institution or organization, and it provides the means of facing up to challenges at each stage. So वो help आउट करता है उन स्टेजेस को, उन चैलेंजेस को उन स्टेजेस पे मीट करने के लिए, एंड टू फुलफिल देम. नाउ द फर्स्ट स्टेज इन द साइकिल इज द बर्थ एंड फॉर्मेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन. सो फर्स्ट स्टेज जो है
इंस्टीट्यूशनल लाइफ साइकिल थ्योरी में, दैट वुड बी द बर्थ एंड फॉर्मेशन, यानी उसका स्टार्ट होना एक इंस्टीट्यूशन का. Then a newly established institution requires a strategy to gain recognition and acceptance. फिर एक इंस्टीट्यूशन जो नया अभी स्टार्ट हुआ है उसको अपनी एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है जिससे वो रिकग्निशन भी ले सके और एक्सेप्टेंस भी ले सके सोसाइटी में और एनवायरनमेंट में. So it must establish its niche in the market and find a clientele, and they have to find clients. So मार्केट में अपनी जगह बनाना और फिर क्लाइंट्स ढूंढना और एस्टैब्लिश करना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट आती है. So the new organization must build a client base and ensure that it is aware of and is in tune with customer needs. Now even if it has created those needs in the first place, so एक नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना क्लाइंट बेस बनाना और ये इंश्योर करना कि वो कंज्यूमर नीड्स पे पूरे उतर रहे हैं, उनको फुलफिल कर रहे हैं, इवन दो कि वो नीड्स जो है क्रिएटेड उन्होंने ही किए हो स्टार्ट में फर्स्ट प्लेस में, बट दे नीड टू बिल्ड अ बेस फॉर द क्लाइंट्स. So the foundation of a new organization is sometimes described as the entrepreneurial phase, because the founders are often visionaries who, through personal effort and risk-taking, ensure the institution's future. So फाउंडेशन जो है एक नए ऑर्गेनाइजेशन की कैसे बनती है कि उसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इट्स लाइक ऑन द स्टार्टिंग फेज, और वो उसके जो फाउंडर्स या उस इंस्टीट्यूशन को शुरू करने वाले वो विजनरीज हैं, ठीक है, और दे हैव हैड अ विजन दैट दे आर गोइंग टू क्रिएट सच एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे हैव सच गोल्स दैट दे वांट टू अचीव. नाउ दो पर्सनल एफर्ट एंड रिस्क टेकिंग इंश्योर द इंस्टीट्यूशंस फ्यूचर. सो उनका फ्यूचर इंस्टीट्यूशन का जो है वो पर्सनल एफर्ट से और रिस्क लेने से भी जो है डिपेंड करता है उसके ऊपर. इट्स नॉट ऑल अबाउट just how they organized it, but all the effort that they are going to put into it. Now, if the new organization succeeds, let's say, it passes into the growth and development stage where it will face new and novel challenges. So, जब अगर वो challenges पूरे कर लेता है institution, start का formation and making a base for a clientele, then they move on to the next stage. Next stage उनकी growth and development है. And growth and development यहाँ पे भी उनको मुख्तलिफ challenges का सामना करना पड़ता है. Now it has to ensure that it can continue to generate the excitement and optimism that is a strong feature of the formation stage. And they have to generate that excitement, और उस चीज़ के वो एक फॉर्मेशन स्टेज का एक स्ट्रॉन्ग फीचर ये है कि एक्साइटमेंट एंड ऑप्टिमिज्म हो लोगों में, ताकि वो एक कंटिन्यू कर सके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ना कंटिन्यूएशन हो सके उसकी. नाउ द मेन प्रॉब्लम हाउएवर in the growth stage is how to cope with the pressures built up by the increased demands for its services. अब growth stage में जब इंस्टीट्यूशन एक अपना फॉर्म उसने कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया, अपना फाउंडेशन बना लिया, उसके बाद उसने अपने क्लाइंटेल हासिल कर लिए, उसके बाद वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेज में. अब ग्रोथ के स्टेज में उसका मेजर प्रॉब्लम ये है कि उसको अपनी सर्विसेज के लिए उसके ऊपर प्रेशर्स हैं इंस्टीट्यूशन पर, जो उसके सर्विसेज में बेहतरी यानी इम्प्रूव्ड सर्विसेज जो है वो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उसने कंपटीशन में रहना दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस के साथ. नाउ मैनेजमेंट सिस्टम्स फेलियर, inability to delegate, and the appointment of staff who do not share the ethos of the institution are usual causes of early failure. So अगर एक इंस्टीट्यूशन शुरू में ही फेल हो रहा है तो उसकी वजह जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम्स के फेलियर हो सकता है, ठीक है. इट कुड बी कि आपने प्रॉपर स्टाफ हायर नहीं किया, ठीक है, और उस स्टाफ का जो है वो मोटिवेशन लेवल नहीं है आपके इंस्टीट्यूशन के लिए कि उसकी ग्रोथ में वो दे शुड बी एंथुजियास्टिक अबाउट द ग्रोथ ऑफ दैट सर्टेन इंस्टीट्यूशन. सो ये कॉजेज आपकी बन सकती हैं अर्ली फेलियर के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए. सो the personal service offered by the young dynamic organization has to be translated into dealing with an enlarged clientele.
अब पर्सनल सर्विसेज जो वो अब इंस्टीट्यूशन एक स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इट्स न्यू एंड यंग ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ, सो उसको अपनी नीड्स जो है या अपनी सर्विसेज जो वो ऑफर कर रहा है, ठीक है, उनको इस तरीके से डील करना है कि वो बहुत बड़े लेवल के क्लाइंटेल को भी डील कर सके. Now, this involves communicating the ethos to new staff and will involve considerable induction and in-service training. So, यहाँ पे total quality management ऐसे इम्प्लाई होता है कि उसमें फिर सर्विस ट्रेनिंग दी जाए स्टाफ को और उनके अंदर ऐसी वैल्यूज़ क्रिएट किए जाएं जिससे वो उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो और वो उसके लिए हेल्प कर सके. Now, there is a danger that while growth requires the establishing of rules and procedures, this can quickly generate into a needless bureaucracy that can stifle the original vision and the mission of the organization. So, growth का अगर हम देखते हैं, अब there is a danger that अगर growth जो है वो rules and procedures require कर रहा है बहुत ज़्यादा, and वो this can like quickly degenerate into a needless bureaucracy में भी चेंज हो सकता है ये, जिससे जो ओरिजिनल विजन है वो लूज हो जाए और जो मिशन था ऑर्गेनाइजेशन का वो लूज हो जाए. Now there is a risk at this stage that the organization will move from being market led to being product driven. So, इस जगह पे इस चीज़ का रिस्क आ जाता है कि जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन या वो मिशन अपना लूज कर दे, इफ दे फॉल्स इनटू दैट स्टेज ऑफ इट, देन वो रिस्क उस जगह पे आता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने it would move from being market led to being product driven. So that means कि वो market led से चल के जो है ना product driven, यानी they are more focusing on the product that they are producing than staying in competition in the market. Now, the maturity stage is potentially the most dangerous stage of an organization's development. अब नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, फर्स्ट स्टेज आ गई कि उसकी फॉर्मेशन एंड बर्थ हो, सेकंड उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड उसका मैच्योरिटी लेवल आ गया ना. मैच्योरिटी स्टेज जो है वो पोटेंशियली डेंजरस स्टेज इसलिए है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट पे असर करती है. नाउ इट इज़ द स्टेज इन विच मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फाइंड देमसेल्व्स. सो ये ऐसा स्टेज है जिसमें आजकल अब मेजोरिटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप को उस जगह पे पाते हैं कि टू मैनी मैच्योर इंस्टीट्यूशंस सीज टू बी प्रोएक्टिव एंड इंस्टेड ओनली रिएक्ट टू एक्सटर्नल इवेंट्स. और उनकी मैच्योर इंस्टीट्यूशंस का वजह जो है डेंजरस होने का वो इसलिए कि वो प्रोएक्टिव होना छोड़ देते हैं, ठीक है, और वो फिर सिर्फ एक्सटर्नल इवेंट्स को ही रिएक्ट करते हैं. they don't have innovation, they don't have changes, they don't have creativeness left in them. So they, instead of improving and creating more and more, they just come to a standstill. एक जगह पे आके रुक जाते हैं कि वहाँ पे उनकी ग्रोथ रुक जाती है फिर. So they cease to innovate and attempt to mold customers into their ways of doing things. So instead of कि वो customers की needs को meet करें या customer की demand को देखें, वो उस जगह पे आके अपनी जो है इनोवेट करना छोड़ देते हैं, ग्रोथ करना छोड़ देते हैं और वो फिर चाहते हैं कि कस्टमर्स उनके हिसाब से जो है चीज़ें करें और उनके हिसाब से, यानी they should blend in. Now the commercial world is littered with the memories of once famous household names. So the roll call of the demise of the famous name of the British motor car industry bears witness to this. So बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड जो ऐसी अब मेमोरीज बन के रह गई हैं, ठीक है, क्योंकि वो किसी टाइम पे बहुत फेमस होती थी, बट बिकॉज दे स्टॉप्ड ग्रोइंग देन दे वेंट इनटू डिक्लाइन एंड फेलियर. सो इसी तरह की एक ब्रिटिश मोटर कार इंडस्ट्री थी, ठीक है. Austin Morris, MG Riley, Triumph, Hillman, Sunbeam and others were all innovators in their day. तो ये सारे Austin जो कार है, Morris motor car industry, MG Riley, Triumph, ये सारी जो है innovators थे अपने दिन के. At that time they were very very successful
and they were very famous for the things that they did. Now the difference between them and Nissan, Honda, Toyota, BMW and Volkswagen is one of management commitment to listen to the market and to develop products that exceed the consumers' expectations. अब उन कंपनीज में और निसान, होंडा, टोयोटा, BMW और वोक्सवैगन में फ़र्क क्या है? ये लोग मीट कर रहे हैं कस्टमर नीड्स. दे आर लिसनिंग टू व्हाट द कस्टमर्स वांट एंड दे आर बिल्डिंग देयर कार्स अकॉर्डिंग टू दैट नीड, और उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हैं जो कंज्यूमर्स के नीड्स हैं उनकी. एंड दूसरी वाली जो कंपनीज थी उनका प्रीवियसली वो डिक्लाइन में क्यों चले गए? बिकॉज दे स्टॉप्ड हियरिंग व्हाट द कस्टमर्स वांटेड एंड नीडेड. सो फेलियर टू अडैप्ट कैन स्विफ्टली लीड टू डिक्लाइन एंड फेलियर. In the new educational marketplace, the same fate can befall educational institutions. अब इसी चीज़ में स्विफ्टली अडाप्ट करने का जो है तरीका लीड करने के लिए, ठीक है, अगर आप नहीं अपनाते तो वो फिर डिक्लाइन एंड फेलियर की तरफ जाती हैं इंस्टीट्यूशंस. और आजकल एक नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी मार्केट प्लेस बनाने के लिए दे हैव टू स्विफ्टली अडॉप्ट थिंग्स एंड दे हैव टू यानी अडेप्ट करके चेंज करना, अपने अंदर चेंज लेके आना एंड कंटिन्यूअस कस्टमर एंड कंज्यूमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना बहुत ज़रूरी है. Otherwise they would go into failure also. And however, the maturity stage now can also be one of renewal if the message of total quality is adopted and the institution develops strategies for adaptation and finds ways of keeping close to its customers. So maturity stage के भी हमने सारे negative points देखे. अब अगर हम ये देखें कि maturity stage को हम अगर positive point of view से देखें तो फिर वहां पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के रूल्स और स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं. अब एक इंस्टीट्यूशन है वो मैच्योरिटी स्टेज पे आ चुका है. अब अगर वो टोटल क्वालिटी के स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट कर रहा है और इंस्टीट्यूशन में यानी डेवलपमेंट और अडेप्टेशन लेके आ रहा है उसमें, एंड स्टेइंग क्लोज टू हिज कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स की भी व्यूज के साथ अपने आप को डेवलप करता जा रहा है, इम्प्रूव करता जा रहा है, देन द मैच्योरिटी स्टेज कैन गो इनटू सक्सेस. Now, it can be a dynamic phase where the experience of the institution can be harassed for its further development. और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है कि एक इंस्टीट्यूशन को अपने एक्सपीरियंस से उसने फर्दर डेवलपमेंट हासिल करने के लिए उसको बहुत स्टेज में से यानी फेज में से गुजरना पड़ता है. Now, in the institutional life cycle theory, now maintaining the dynamism and entrepreneurial flair is of major importance and when there are rapid changes in the external environment. So एक डायनामिज्म, ठीक है, और एक स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योर फ्लेयर को मेजर इम्पोर्टेंस आप जब दे सकते हैं जब वो रैपिड चेंजेस हो रही हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से. नाउ द इंस्टीट्यूशन मस्ट पीरियडिकली रीअसेस इट्स एम्स एंड कंटिन्यूअली evaluate the activities critical to the institution's continual success. और एक इंस्टीट्यूशन को फिर अपना स्टेप बाय स्टेप अपने एम्स को चेक करना है और ये कंटिन्यूअली एवेल्युएट करना है अपनी एक्टिविटीज़ को क्रिटिकल तरीके से, ताकि वो एक इंस्टीट्यूशन की सक्सेस में वो जज कर सके कि उसकी क्या ऐसे फैक्टर्स या ऐसे क्या फीचर्स हैं जो उसको सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं. Now, in the life cycle of organizations, decline and decay are not inevitable. But the periodic process of revitalization needs to be a conscious exercise. So, life cycle organizations की जो है उसमें डिक्लाइन और डिके होना वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको यानी अवॉइड कर सकें किसी तरीके से. समटाइम्स इट डज हैपन इवन इफ यू आर ट्राइंग योर बेस्ट. सो उस वक्त जो है वो प्रोसेस ऑफ रिवाइटलाइजेशन यानी उस चीज़ को रिन्यू करने का या अपनी चीज़ों को एक दफ़ा से दोबारा जनरेट करके सक्सेस की तरफ लेके जाना, वो एक मेजर कॉन्शियस एक्सरसाइज की तरह है. Now, when we look at the cycle, now these are phases of institutional development. Institutional life cycle theory में development और time आ गया, ठीक है. अब time phase में birth and development phase बिल्कुल base में start हुआ, ठीक है. It's right at the bottom. Then it gradually grows to growth and expansion stage where it's increasing. Then it comes to the maturity stage. अब maturity stage जो है वो थोड़ा सा level पे, अगर आप ये नोट करें कि अगर उस जगह पे आके
एक इंस्टीट्यूशन जो है अपने आप को इम्प्रूवमेंट छोड़ दे या डेवलपमेंट छोड़ दे, then it would stay static at that, and then instead of going towards success it would go towards decline again. But if it goes from the maturity phase, it can go even to the resurgence and new revitalization, यानी वो दोबारा से अपने आप को renew कर रहा है, refresh कर रहा है, and then in that way it can go towards success. So in total quality management organizations, अब जब हम उनको देखते हैं, जब हम total quality management को organizations में implement करते हैं ना, institutions with traditional ways of working are finding it increasingly difficult to cope with the pressure of change. So institutions जो हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये अडेप्ट करना या इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि वो जो प्रेशर्स हैं चेंजिंग लाने के लिए अपने इंस्टीट्यूशंस में, वो उस चीज़ को कोप नहीं कर पाते. दे कैंट डील विद इट. सो रिजिड बाउंड्रीज, बैरियर्स एंड आउटमोडेड एटीट्यूड्स यूजुअली कैरेक्टराइज सच ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस. सो ऐसी रिजिड बाउंड्रीज यानी उन्होंने ऐसे अपने रूल्स या रेगुलेशंस ऐसे बना दिए गए होते हैं या ऐसे बैरियर्स है जिनको क्रॉस करना या उनको ओवरकम करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है. एंड आउटमोडेड एटीट्यूड्स और यानी ओल्ड फैशन स्टाइल से वो उनका एटीट्यूड सोचने का. सो देन दैट वुड बी मोर वर्किंग इन ए ट्रेडिशनल वे. सो एक इंस्टीट्यूशन को आप ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं कि जब वो अपनी तौर तरीके से हट के चेंजिंग ना लाना चाह रहा हो अपने अंदर. Now these features often include a lack of common mission, overbearing hierarchies and an over-reliance on bureaucratic procedures. So इसमें लैक जो है, इसका फीचर्स जो है, जब ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के मोस्ट जो है वो कॉमन मिशन जो है उसकी कमी होना, ठीक है. फिर हायरार्कीज की ओवरबेयरिंग होना, ठीक है, एंड ओवर रिलायंस ऑन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स पे ज़्यादा रिलाई करना या ज़्यादा इन्हिसार करना. दैट वुड लीड टू बीइंग अ मोर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन व्हिच would then be going into decline. Now such organizations have not developed a customer focus and their pupils and students are more often than not seen as liabilities, not assets. So ऐसे organizations के जो है वो उनका एक customer focus नहीं develop हुआ होता और वो अपने स्टूडेंट्स को जो है वो एक एसेट नहीं समझते, अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए बेहतरी नहीं बट लायबिलिटी समझते हैं. ना इम्प्रूवमेंट्स व्हेन दे आर अटेम्प्टेड यूजुअली हैव एज देयर गोल रिड्यूसिंग कॉस्ट. सो इम्प्रूवमेंट्स अगर लाना वो चाहें, ठीक है, व्हेन दे आर अटेम्प्टेड, जब वो अटेम्प्ट करें हम उनको, सो यूजुअली हैव उनका एक गोल रिड्यूसिंग कॉस्ट उनके लिए होते हैं जो यू हैव टू पे. इफ यू वांट टू इम्प्रूव देन यू हैव टू ब्रिंग चेंजेस इन इट एंड दैट वुड बी लाइक in a way that you are going to have a more mature thinking about your institution, a more broader vision about it. और फिर उसकी आप सक्सेस पे आप उसको जब भी लेके जा सकते हो जब आप उसमें चेंज लाने के लिए तैयार हो. Now what TQM offers is the opportunity for institutions to adopt a different outlook, diametrically opposed to the traditional model. So अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को देखें तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस को जो है वो एक ट्रेडिशनल तरीके से हट के वर्क करने की जो है आउटलुक दे रहा है एंड उनको यानी उसकी तरफ मोटिवेट कर रहा है. नाउ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं will have integrated quality into their structure and recognize that quality involves everyone's commitment and contribution at every level. So जो organizations total quality management को use कर रही हैं उनको ये already पता है कि उनको inbuilt structure में उनको build up करना है quality and हर एक की commitment quality की, हर person in that organization has to be committed to contributing at their own level. And to achieve this, a considerable investment needs to be made in people as they are the keys to quality and hence to the institution's future. So, इस चीज़ को achieve करने के लिए एक कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, लोगों में, जिसमें क्योंकि वो एक क्वालिटी की की है उस इंस्टीट्यूशन की, उसकी सक्सेस की चाबी है एंड एक इंस्टीट्यूशन का फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है. सो हायरिंग बेटर स्टाफ, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स और प्रोफेसर्स
having well-trained people in your organization, it will obviously, it's a big investment because you're paying more to them. But in the end, that is the institution's future. It has a bright future. So if a school or college aspires to be a total quality institution, it must act like one. So उसको उस तरह act भी करना है अगर वो total quality institution अपने आप को कहलाना चाह रहा है. Now it must innovate and drive ahead to achieve the vision contained in its mission statement. So उसको innovate करना है, changes लानी है अपने, ठीक है, अपने, ताकि वो अपने mission statement से हट के चीज़ें भी achieve कर सकें. Now it must recognize that quality will always provide an edge in the market. और क्वालिटी जो है वो हमेशा मार्केट में आपको एक अपनी ख़ास जगह प्रोवाइड करेगी और आपको एक दूसरों पे थोड़ा सबकत हासिल होगी अपने कंपटीशन की जो इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे. अगर आपके लेट्स से कि यूनिवर्सिटी में they have they're working on the total quality management program, and if they are improving in a better way and continuous improvement, quality improvement, then they would have an edge over the other competitors who are not using it. So most important, it must carry the message to its staff and ensure that they are partners in the process. So सबसे important चीज़ once again आपके workers, आपका staff जो है उनको भी ये मैसेज जाना चाहिए कि they are playing an important part in the management of the institution and they are like partners in the process. ठीक है, उनके बगैर जब तक उनके cooperate या वो लोग नहीं cooperate करते या वो at every step of their duties they don't implement quality, then that institution can never grow to that level. Now the quality route is by now well trodden but just as hard. So the driving force has to come from the top and the process has to be constantly nurtured and reinforced. So leadership is the key, but so is listening and learning. So quality route जो है, it's very hard, but उसका driving force क्या है कि आपके जो top management है या top leaders हैं, ठीक है, उनसे ये चीज़ शुरू होनी चाहिए quality की, ठीक है, उनसे ये rules and process वहाँ से चले and फिर वो नीचे वाले staff में या employees में काम आए and वहाँ से वो reinforce हो. And leadership जो है उसकी key तो है, पर सुनना और learn करना भी important है उसके लिए. So it is often the little things that provide the evidence of quality. So छोटी छोटी चीज़ें भी आपको quality के proof देती हैं. Institutions that make the effort to get the details right also have the right approach to the major issues. So institutions जो effort करती हैं इन details को कि वो छोटी छोटी details उनकी ठीक हों, कोई mistakes ना हो, flaws ना हो, ठीक है, they're going towards the right approach. In a world where so many services look superficially similar, it is attention to detail that provides the competitive edge. So, ऐसे आजकल की दुनिया में जहाँ पे services आपके constantly यानी they are looked as superficial things, but उनको छोटी छोटी चीज़ों को attention देना, details पे work करना और छोटे details को भी improve करके उनमें quality लाना, that would वो आपको वो edge देता है जो आप अपनी marketplace में अपनी competition में जगह बनाते हो. Now above all, in the words of Tom Peters, ensure that quality is always defined in terms of the customer perceptions. So Tom Peters के मुताबिक उसने एक चीज़ ये चीज़ कही कि आप ये श्योर रहें कि क्वालिटी जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो कस्टमर की परसेप्शन के मुताबिक हो, उसकी सोच पे. Now, there are no correct forms of organization. Now, if we look at the lean form or simple structure of it, so there are no correct forms of organization for total quality management. Although some structures are more suitable than others. Now, structures need to be appropriate and facilitate the total quality management process. So, structures जो हैं वो इस तरह उनको फैसिलिटेट करना चाहिए. कोई ऐसा ख़ास फॉर्म नहीं है या ऐसा कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है जिसको हम कह सकें कि वी वुड बी यूजिंग फॉर इट, कि जो दूसरों से ज़्यादा बेहतर यानी यूज़ में आ रहा हो, लेकिन स्ट्रक्चर्स आर अप्रोप्रिएट क्योंकि वो फैसिलिटेट करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रोसेस को. नाउ द एविडेंस सजेस्ट दैट एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डेवलप्स, मच ऑफ द हायरार्की इज एलिमिनेटेड and
flatter structures with strong cross-institutional links take their place. So जब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डेवलप होता है कि इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, सो बहुत ज़्यादा जो है जो टॉप लीडरशिप और हायरार्की है वो एलिमिनेट हो जाती है एंड फ्लैटर स्ट्रक्चर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल लिंक्स के साथ वो उसकी जगह ले लेते हैं एंड दे स्टार्ट डेवलपिंग. सो द मोर अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स आर सिंपल, लीन एंड आर बिल्ट अराउंड स्ट्रॉन्ग टीम वर्क. सो एक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट या ज़्यादा यूज़ में आए वो बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एंड इट शुड बी बिल्ट विद स्ट्रांग टीम वर्क, और उसमें टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीम वर्क, लेट्स से सो मच अ फीचर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, reduces the need for much of the middle management controlling and scheduling function. So development और strengthening करना टीम वर्क की, ठीक है, वो एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फीचर है मेजर, ठीक है, और वो इस चीज़ को रिड्यूस करता है कि आपका मिडिल मैनेजमेंट कंट्रोलिंग और स्केड्यूलिंग जो फंक्शन है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल वर्किंग ऑन अ सर्टेन एजेंडा टू इम्प्रूव द क्वालिटी. नाउ इन इट्स प्लेस middle managers become the leaders and champions of quality and take on the role of supporting teams and assisting their development. So in this place we would say कि जो middle managers जो पहले सिर्फ एक center communication यानी senior management से और निचले staff के बीच में they were just like communicators and they didn't want to change their views, they then become, अगर हम total quality management imply करते हैं तो they become the leaders then, वो quality के champions बन जाते हैं and they take on the role, वो role उन teams को, अपने staff और employees के teams को support करने के और assist करने के role जो है ना वो प्ले करना शुरू कर देते हैं, जिससे डेवलपमेंट आती है. नाउ दिस न्यू रोल ऑफ मिडिल मैनेजर्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज टीम वर्क कैन हैव अ डाउन साइड. सो मिडिल मैनेजर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रोल इसलिए है कि वो टीम वर्क को जो है उसका एक डाउन साइड भी हो सकता है और उसको हेल्प आउट करने के लिए मिडिल मैनेजर्स वुड प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट. नाउ टीम्स देयर आर टू ऑटोनोमीज मे ब्रांच आउट इन अनकोऑर्डिनेटेड एंड इनइफेक्टिव वेज. Teamwork needs to be structured within a simple but effective management system. So teamwork अगर हम उनको टीम्स को छोड़ दें उनके अपने काम करने के तरीके पे और उनको कोई लीड ना कर रहा हो, कोई मिडिल मैनेजर जो है वो अपने रोल्स प्ले प्रॉपर ना कर रहे हो, तो वो टीम्स जो है वो फिर अनकोऑर्डिनेटेड हो जाती हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहती और उनका काम भी इनइफेक्टिव हो जाता है. सो टीम वर्क को जो है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव होना चाहिए इन अ सिंपल वे ताकि वो मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से चल सके. नाउ इट इज इम्पोर्टेंट दैट टीम्स अंडरस्टैंड द विजन एंड द पॉलिसीज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, और उन टीम्स को जो है विजन और पॉलिसीज इंस्टीट्यूशन की उनकी बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए. Now this is one of the reasons why vision and leadership are so heavily emphasized in the TQM literature. So TQM literature में सबसे ज़्यादा emphasize या जोर ये वो चीज़ important जो शो हुई है वो विजन है लीडरशिप का, ठीक है, और उनकी लीडरशिप का जो विजन अगर ब्रॉड होगा, ठीक है, so obviously then the lower staff would be working according to that and that would have a total improvement system embedded into it. Now organizations, let's say, from a TQM perspective, are systems designed to serve customers. So organizations जो हैं वो अगर हम total quality management के perspective से देखें तो वो customers को serve करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है. Now in order to serve the customers, all the parts and systems of the institution must dovetail. So the success of one unit of the organization affects the performance of the whole. So अगर टीम वर्क इसलिए इम्पोर्टेंट आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि जहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे एक जगह भी कोई यूनिट जो है या कोई टीम जो है वो अपने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे सके तो वो फिर सारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है,
इट्स नॉट कि सिर्फ उस एक सेक्टर को अफेक्ट करेगा, बट ओवरऑल एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन को वो अफेक्ट करेगा. नाउ द डिफरेंस बिटवीन अ मैच्योर स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग अंडर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड द मोर यूजुअल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स इज दैट ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर स्ट्रक्चर्ड अराउंड फंक्शंस, while total quality management institutions are organized around processes. So, फर्क अगर हम देखें मैच्योर स्ट्रक्चर का, ठीक है, जो TQM को यूज कर रहा है या फिर एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म, तो उसमें फर्क ये आ जाता है कि जो स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फंक्शंस के ऊपर स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, and they are just functioning on they are just structured, let's say, on the functions that they provide. But अगर total quality management institution है वो processes के ऊपर depend करता है, ठीक है. So a process would be coming step by step in every level. Now the idea is that the whole of a process should be under a single and simple chain of command. So idea इसका क्या है कि पूरा जो process है वो एक सिंपल और एक ही चेन ऑफ कमांड के अंडर हो. देयर शुडंट बी डिफरेंट people leading or different ideas that would be incorporated into it, because that would create confusion for them. So, for example, are all the functions associated with pupil student support, welfare integrated and under a single source of control? So, main चीज आपने क्या देखनी है कि एग्जाम्पल के लिए कि स्टूडेंट सपोर्ट जो है या वेलफेयर जो है उनकी, वो क्या सिर्फ एक ही सोर्स के अंडर है कंट्रोल में, या आर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. नाउ दिस पिक्चर इज अ लिटिल complicated because it says the differences between a quality institution and an ordinary institution. It's giving you the view of an ordinary institution or a quality institution. So quality institution we would say would be customer focused. ठीक है, क्वालिटी किसी इंस्टीट्यूशन में लाने के लिए कस्टमर फोकस होना बहुत ज़रूरी है. और ordinary institution would be in place focusing on the internal needs. So focus on preventing problems. A quality institution would be focusing on preventing problems. It would be investing in people, and it has a strategy for quality. It treats complaints as an opportunity to learn. So quality institutions में वो अपने लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने पे फोकस करते हैं, ठीक है, वो ऐसी स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं कि वो कंप्लेंट्स को बजाय नेगेटिवली लेने के उससे सीखते हैं. Has defined the quality characteristics of all areas of the organization, has a quality policy and plan, and senior management is leading quality. So एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में सीनियर मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है, ठीक है, ताकि वो क्वालिटी की तरफ लीड कर सकें. फिर उनकी पॉलिसी एंड प्लानिंग होती है. द इम्प्रूवमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स एवरीबडी. फिर उसमें सारों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है. अ क्वालिटी फैसिलिटेटर देन लीड्स द इम्प्रूवमेंट प्रोसेस. फिर एक क्वालिटी फैसिलिटेटर जो है वो उस प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है. पीपल आर सीन टू क्रिएट क्वालिटी एंड क्रिएटिविटी इज इनकरेज्ड. सो क्रिएटिविटी को इनकरेज किया जाता है और समझा जाता है कि लोग जो है वो क्वालिटी क्रिएट कर सकते हैं. इज क्लियर अबाउट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. They're clear about everyone has their duty and they're clear about what role they play in it. Has clear evaluation strategies. Sees quality as a means to improve customer satisfaction. Plans long term. Then quality is seen as part of the culture. सो एक क्वालिटी को कल्चर समझा जाता है. क्वालिटी में एवेल्यूएशन स्ट्रैटेजीज बड़े क्लियर होते हैं, ठीक है. फिर क्वालिटी को एक समझा जाता है कि इट्स अ मीन टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है. एंड इज डेवलपिंग क्वालिटी इन लाइन विद इट्स ओन स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स एंड हैज अ डिस्टिंक्टिव मिशन. और उसका एक डिस्टिंक्टिव मिशन होता है. अब ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशंस को अगर आप मुकाबले में देखें तो वो फोकस किस चीज पे कर रहे हैं? इंटरनल नीड्स के ऊपर, ठीक है. फोकस ऑन डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स. सिर्फ प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करना, ना कि उनको इम्प्रूव करना, ठीक है. इज नॉट सिस्टमैटिक इन इट्स अप्रोच एंड स्टाफ डेवलपमेंट. स्टाफ डेवलपमेंट में सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चलते. लैक्स स्ट्रेटेजिक क्वालिटी विजन.
ठीक है, ट्रीट्स कंप्लेंट्स एज अ न्यूसेंस। सो उनके लिए स्ट्रेटेजिक क्वालिटी का विजन ही नहीं है, और वो अगर उनको कंप्लेंट्स होती हैं तो वो उस चीज़ को एक प्रॉब्लम या एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। इज वैग अबाउट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उनको आइडिया भी नहीं होता क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का। हैज़ नो क्वालिटी प्लान। द मैनेजमेंट रोल इज सीन एज वन ऑफ कंट्रोल, और वहाँ पे यानी ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशंस में मैनेजमेंट जो रोल है वो एक पावर का इफेक्ट देता है, मतलब कि उनके पास ही सारा कंट्रोल होता है, इंडिविजुअल्स के पास कोई कंट्रोल नहीं होता। ओनली द मैनेजमेंट टीम इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। देयर इज नो क्वालिटी फैसिलिटेटर, क्वालिटी फैसिलिटेटर भी कोई नहीं होता। प्रोसीजर्स एंड रूल्स आर ऑल इम्पोर्टेंट, सो प्रोसीजर एंड रूल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज वेग अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एक की ड्यूटीज और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली असाइन नहीं है। हैज़ नो सिस्टमैटिक एवेल्युएशन स्ट्रैटेजी, उनको एवेल्युएट करने का कोई सिस्टम नहीं है। सीज क्वालिटी एज अ मीन्स टू कट कॉस्ट, और कॉस्ट सिर्फ रिड्यूस करने के लिए मे भी क्वालिटी को यूज करते हैं। प्लान्स शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। क्वालिटी इज सीन एज एन अनदर एंड ट्रबलसम इनिशिएटिव, ठीक है। और क्वालिटी को एक डिफरेंट, क्योंकि वो चेंजिंग लेके आ रही होती है एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको एक मुसीबत के तौर पे लिया जाता है। नाउ इट्स एग्जामिनिंग क्वालिटी टू मीट द डिमांड्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज, और हैज़ नो डिस्टिंक्टिव मिशन, उसका अपना कोई मिशन नहीं होता, और वो सिर्फ एक्सटर्नल एजेंसीज को की डिमांड्स पूरी करने के लिए मे बी क्वालिटी को एग्जामिन करते हैं। So you see there is a huge difference between the institutions that are working with quality and the ordinary institutions. Now, under total quality management, structure follows process, and the following are necessary features of any quality organization. So total quality management में structure जो है वो process को follow करता है, ठीक है। और फॉलोइंग जो है और नेसेसरी फीचर्स अब जो आ जाते हैं जो क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ज़रूरी है। वन वुड बी यूनिट ऑप्टिमाइजेशन। Every unit, program and department needs to operate efficiently and effectively. So हर डिपार्टमेंट जो है उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से अपने यूनिट या प्रोग्राम को ऑपरेट करना है। Now, each area needs to have clear and preferably written quality standards within which to cooperate. So, ऑपरेट करने के लिए उनके पास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रिटन फॉर्म में होने चाहिए। Now, vertical alignment. So, unit optimization, उसमें every unit and program और department जो है उनका effective होना और उनके पास written quality standards होना. Then vertical alignment. Every member of staff needs to understand the strategy of the institution and its direction and mission, although they may not need to know the detailed breakdown of objectives. So उनको maybe objectives का breakdown या उसका थोड़ा ज़रूरी नहीं है, but vertical alignment में बहुत ज़रूरी है कि हर staff को institution का जो है direction या mission जो है वो मालूम होना चाहिए. They should be very clear about that. And the third would be horizontal alignment. So horizontal alignment क्या आएगी कि there should be a lack of competition between units, programs, departments and an understanding of the aims and requirements of other parts of the organization. So आपस में एक organization में departments या units या programs में competition नहीं होना चाहिए, but एक understanding develop होनी चाहिए कि सारे team work करके मिल के काम करें, ठीक है, और हर एक ने एक दूसरे के साथ cooperate करना है. Now mechanisms need to be in place to deal effectively with any boundary problems. और ऐसे mechanisms जो है वो होने चाहिए, ठीक है, that would deal effectively जो किसी भी boundary problems के साथ. A single command for each process. So एक single command जो है हर process के लिए the key processes, whether they are curriculum, pastoral or administrative, need to be charted and organized so that each process is brought under a single chain of command. So single command होना चाहिए हर process के लिए, ठीक है, और हर चीज़ को, चाहे वो curriculum है चाहे administrative duties है, वो हर चीज़ को चार्ट करके organize करके एक single chain of command के नीचे लेके आना ज़रूरी है.
Now, the charting process is best carried out from an analysis that starts by asking who the customers for the process are and continues by analyzing their needs and the standards they should expect. So, हम charting कैसे कर सकते हैं? Charting process हमारा वो एक analysis की base पे analyze करना है कि आपके जो customers हैं वो कौन है और उनका क्या needs हैं, ठीक है, और वो क्या standards चाहते हैं आपसे. अब structural reorganizations are not a requirement for total quality management. So पूरे structural reorganization यानी नए सिरे से उसको पूरे structure को develop करना या rebuild करना किसी चीज़ को वो total quality management की requirement नहीं है. Now reorganizations may be useful and necessary to the quality improvement process, but equally they can divert attention from quality improvement and lead to institutional fatigue. So अगर आप सारी चीज़ों को एकदम से चेंज करना चाहें तो वो इंस्टीट्यूशनल फटीग में चला जाएगा निस्बतन के क्वालिटी इम्प्रूव होने के बजाय. सो दे आर इम्पोर्टेंट बट नॉट एज इम्पोर्टेंट के वो इतने नेसेसरी और यूजफुल नहीं है कि वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की राह में उसको हायल नहीं होना चाहिए. So there are plenty of examples in education where organizational restructuring has impeded quality development. और ऐसे बहुत सारे examples हैं quality educational institutions में जिसमें quality जो है वो damage हुई है organization की restructuring से यानी rebuilding से. So there is usually only so much energy within a system. So एक system में एक limit तक ही energy होती है. Now total quality management usually provides as much change as the organization can reasonably cope with. So total quality management वही change देता है जो एक institution बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, और deal कर सकता है जिससे. Now staff need some familiar signposts while adapting to new working methods. स्टाफ को जो है वो ऐसे साइन पोस्ट अडेप्ट करने हैं, ठीक है, वर्किंग मेथड्स ऐसे अपने नए अडेप्ट करने हैं. इट इज सेंसिबल टू लेट स्ट्रक्चरल चेंज डेवलप आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड सो इट इज प्रॉब्ली बेस्ट टू अवॉइड ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग एट द स्टार्ट ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम. सो बजाय कि आप रीस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट में शुरू में खुद ही करना शुरू कर दें एक ऑर्गेनाइजेशन को, आपको चाहिए कि आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को वो टाइम दें कि वो अपना स्ट्रक्चर ऐसे इम्प्रूव करे और वो इस प्रोसेस को आहिस्ता आहिस्ता लेके चले और जिससे क्वालिटी इम्प्रूव होने का सिस्टम जो है ना वो क्रिएट हो सके. नाउ लेट्स से दैट एनवायरनमेंट, इफ वी आर स्पीकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, so let's say now the environment, if we're speaking about the environment in aligned organization, a partially aligned organization, हम दो organizations को देखते हैं, ठीक है, an organization at odds with itself and its environment, no sense of direction or purpose. अगर वो उसका कोई डायरेक्शन ऑफ पर्पस नहीं है और वो ऑड्स पे है तो इट वुड बी गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस. मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू कम्युनिकेट इट्स विजन टू द वर्कफोर्स. पार्शली अलाइंड ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप उसका एनवायरनमेंट देखें तो उसमें मैनेजमेंट ने दे हैव फेल्ड अपने वर्कफोर्स को अपनी विजन बताना या टू मेक them related to it, to help them be a part of it, they have failed in that. Now a totally aligned organization, agar aap uski environment dekho, so everything is in a sequence instead of going in all different directions and things in an unorderly way. An organization which is aligned with the environment would be going in a perfect direction. So now the next part, organization or institution or let's say any institution would be playing would be the most important part would be the leadership. अब अगर हम leadership को देखते हैं, now leadership total quality is a passion and a way of life for those organizations that live its message. So leadership में अगर हम देखें तो total quality जो है वो एक passion बन जाता है, एक जिंदा रहने का एक तरीका हो जाता है. The question is how to generate the passion and the pride required to generate quality in education. So question यहाँ पे क्या आ जाता है कि आप passion को कैसे generate कर सकते हैं और वो pride जो है जो required है to generate quality education में quality लेके आने के लिए, generate करने के लिए, what would be the means of it. Now Peter and Austin researched the characteristics of excellence for their book A Passion for Excellence in 1986. Their research led them to believe that what makes the difference is leadership.
सो पीटर्स एंड ऑस्टन ने अपनी बुक जो उन्होंने लिखी 86 में, अ पैशन फॉर एक्सीलेंस, उसमें उन्होंने ये चीज़ जो है मेन रिसर्च में देखा कि कोई भी चीज़ का फ़र्क जो है, डिफरेंस जो है वो लीडरशिप लेके आती है। अगर लीडरशिप आपकी बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली आपका इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो उस लीडरशिप के अंडर काम कर रहा है, दैट वुड बी गोइंग टुवर्ड सक्सेस। नाउ दे आर्ग्यू स्ट्रांगली फॉर अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लीडरशिप टू लीड द क्वालिटी रेवोल्यूशन, अ स्टाइल टू विच दे हैव गिवन द एक्रोनिम MBWA और मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अबाउट। तो इन्होंने एक सिस्टम जो है MBWA, मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अबाउट, ये डेवलप किया और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से लीडरशिप जो है वो एक क्वालिटी रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है और चेंज ला सकता है ह्यूज। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपकी लीडरशिप बेहतर है तो वो आपके इंस्टीट्यूशन को बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं। Now, a passion for excellence cannot be communicated from behind the office desk. Office desk के पीछे से आप सिर्फ passion को communicate नहीं कर सकते। MBWA emphasizes both the visibility of leaders and their understanding and feeling for the front line and the processes of the institution. So, MBWA वो सिर्फ leaders की visibility पे emphasize नहीं करा, but उनकी understanding और उनका feeling, उनका passion towards improving the processes in their institution. So this style of leadership is about communicating the vision and the values of the institution to others and getting out among the staff and the customers and experiencing the services for themselves. So इनके point of view से leadership सिर्फ कुर्सी के पीछे बैठ के रूल करना नहीं है, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोसेस करना नहीं, बट अपने स्टाफ के साथ मिलके और अपने कस्टमर्स के साथ मिलके ये एक्सपीरियंस लेना कि उनके सर्विसेज के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, एंड टू गेट वैल्यूड इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर कस्टमर्स एंड देयर स्टाफ एंड वर्क विद देम इन एज अ होल. So instead of just sitting behind a chair and leading them, they need to be a part of the system. Now, the educational leader, if we speak about an educational leader, now Peters and Austin gave specific consideration to educational leadership in a chapter entitled Excellence is in School Leadership. So, Peter Austin ने एक स्पेसिफिकेशन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दिया कि एजुकेशनल लीडरशिप जो है उसके लिए उन्होंने एक चैप्टर बनाया है अपनी बुक में, एक्सलेंस इन स्कूल लीडरशिप. नाउ दे सी द एजुकेशनल लीडर एज नीडिंग द फॉलोइंग एट्रीब्यूट. सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक एजुकेशनल लीडर को उसके अंदर ये खूबियाँ होनी चाहिए. नंबर 1, विजन एंड सिम्बल्स. ठीक है, द हेड टीचर और प्रिंसिपल मस्ट कम्युनिकेट द इंस्टीट्यूशंस वैल्यूज टू द स्टाफ, पीपल्स एंड स्टूडेंट्स एंड द वाइडर कम्युनिटी. वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्रिंसिपल या हेड है या टीचर है, वो उसको अपने इंस्टीट्यूशन के वैल्यूज जो है वो अपने स्टाफ और कस्टमर्स को बताना या स्टूडेंट्स को बताना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अबाउट इज द रिक्वायर्ड लीडरशिप स्टाइल फॉर एनी इंस्टीट्यूशन. सो मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अबाउट, दैट मीन्स दैट दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द लीडरशिप हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द organization, and they have to go about and learn for themselves the betterment, what things are going on around in the institution. They have to keep an eye on it themselves personally. Now for the kids, this is their educational equivalent to close to the customer. It ensures that the institution has a clear focus on its primary customers. और एक मेन चीज़ उनका जो है ना, फोकस कस्टमर्स के ऊपर जो है इंस्टीट्यूशन का, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए. Number 4 would be autonomy, experimentation and support for failure. So educational leaders must encourage innovation among their staff and be prepared for the failures that inevitably accompany innovation also. So एक लीडर के लिए ये encourage करना अपने स्टाफ को कि वो अपने अंदर इनोवेशंस लेके आए, चेंजेस लेके आए, एंड उनको एंड दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड ऑल्सो कि इनोवेशन के साथ मिस्टेक्स और फेलियर्स भी आती हैं, एंड दे हैव टू एक्सेप्ट इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. नाउ क्रिएट अ सेंस ऑफ फैमिली. एक फैमिली की तरह सब काम करना चाहिए. द लीडर नीड्स टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ कम्युनिटी अमंग द इंस्टीट्यूशंस, पीपल्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ. सो एक फैमिली का अफेक्ट, एक लीडरशिप को ये कम्युनिटी का एक कॉन्सेप्ट, एक फैमिली का कॉन्सेप्ट एक इंस्टीट्यूशन में अपने देना, जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टाफ, एम्प्लॉइज सब
एक फैमिली की तरह फील करें. They should be in a rhythm. They should be in a whole. Now the sense of the whole, rhythm, passion, intensity and enthusiasm, these are the essential personal qualities required of the educational leader. So educational leader में sense of whole होना चाहिए, ठीक है, rhythm होना चाहिए, passion होना चाहिए, intensity होनी चाहिए and enthusiasm होना चाहिए growth की तरफ, ठीक है. And they are essential personal qualities, ठीक है. ये एक educational leader में होना बहुत लाजमी है. Now, the significance of leadership for undertaking the transformation of total quality management should not be underestimated. So, without leadership at all levels of the institution, the improvement process cannot be sustained. So, अगर हम ये देखें कि significance जो है leadership की, वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन या उसको चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर लेवल पे इंस्टीट्यूशन के जो है ना एक प्रॉपर लीडरशिप हो. अदरवाइज क्वालिटी प्रोसेस जो है इम्प्रूवमेंट का वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये सस्टेन नहीं रह सकता. So when we speak about the educational leader, now the qualities that a leader should have should mainly be the commitment to quality has to be a prime role for any leader. और एक लीडर के लिए एक मेजर रोल जो है वो क्वालिटी की तरफ कमिटेड रहना. नाउ इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज सेड टू बी अ टॉप डाउन प्रोसेस. सो इसलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हम टॉप डाउन प्रोसेस कहते हैं कि वो ऊपर से लेके नीचे चलती है. तो ऊपर वाले जो है सीनियर मैनेजमेंट या लीडर्स जो हैं, दे वुड इम्प्लीमेंट दीज रूल्स एंड देन द फर्दर इट वुड बी गोइंग डाउन. Now, it has been estimated that 80% of quality initiatives fail in the first 2 years. So, quality ensure करने के लिए जो है सबसे मेजर ये चीज़ देखी गई है कि एस्टिमेट किया कि 80% फेलियर्स जो है ना पहले 2 साल में होती हैं. The main reason for failure is lack of senior management, backing and commitment. So, उनकी बैकिंग और कमिटमेंट में लैक होता है, इस वजह से सीनियर मैनेजमेंट के तो सिस्टम जो है क्वालिटी का वो फेल होता है. Now, quality improvement is too important to leave to the quality coordinator. So, quality coordinator के पास सिर्फ छोड़ना ये quality improvements जो है ना, it's very important. It can't just be the responsibility of the quality coordinator. To succeed in educational total quality management requires strong and purposeful leadership. सो एजुकेशन में अगर सक्सीड करना सिर्फ क्वालिटी कोऑर्डिनेटर उसको डील नहीं कर सकता, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है. नाउ टिपिकली managers in non-TQM organizations spend 30% of their time in dealing with system failures, complaints and firefighting. So typically अगर देखा जाए तो managers जो है वो जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, उसमें 30% वो अपना टाइम किस चीज़ में गुजार देते हैं, सिस्टम फेलियर्स में, कंप्लेंट्स को डील करने के लिए और फायर फाइटिंग इट. नाउ एज TQM सेव्स दैट टाइम, मैनेजर्स हैव मोर टाइम. सो TQM क्योंकि उनको सेव कर रहा है मैनेजमेंट को ये टाइम के जिसमें वो अपना 30% टाइम जो था वो फेलियर्स और कंप्लेंट्स की तरफ जा रहे थे, तो दे आर नाउ दे हैव टाइम टू improve their system. Now, senior management. So, communicating a vision. Senior management must lead give the lead and provide vision and inspiration to their staff. In total quality management organizations, all managers have to be leaders and champions of the quality process. So senior management में जो है एक चीज़ ये important है कि they have to provide vision and inspiration, ठीक है. और total quality management organizations, they need to be all managers and have to be leaders and champions जो हैं अपने quality process में. Now they need to communicate the mission and cascade it throughout the institution. और अपना mission जो है वो communicate करना और उसको फिर सब इंस्टीट्यूशन में फैला देना. Many managers, particularly middle managers, may find total quality difficult to accept and to implement. So बहुत सारे ऐसे managers हैं, ठीक है, जो particularly जो middle managers हैं especially, उनको total quality का accept करना और implement करना उनके लिए difficult होता है उसके रूल्स. नाउ इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द मैनेजमेंट माइंडसेट एज वेल एज अ चेंज ऑफ रोल. सो सिर्फ ये जो है ना उनकी मैनेजमेंट की सोच भी चेंज होना ज़रूरी है क्वालिटी टोटल क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए. Now it is a change from the I am in charge mentality
to that of manager as supporter and leader of the frontline staff. So इसमें जो middle managers हैं जैसे head of departments हो गए या heads हो गए टीम के, ठीक है, they are, उनको ये mentality अपनी change करनी है कि I'm in charge, I am the one who's going to deal with it, but instead they should be playing the role of supporting their staff and helping them in improvement and quality. So the function of leadership is to enhance the quality of learning and to support the staff who deliver it. So leadership का quality main चीज़ क्या है कि they have to enhance, अपने staff को support भी करें जो deliver कर रहे हैं quality को, और quality learning को enhance करें. Now while this sounds obvious, it is not always the way management functions are viewed. So traditional notions of status can lie uneasily with the total quality approach. So sometimes ये नहीं, हम सोचते हैं कि management इसी तरह ही function करना चाहिए, but most of the time it doesn't, and sometimes status can lie uneasily with the total quality approach के साथ mainly, and TQM turns the traditional institution on its head and inverts the hierarchy of functions. So it empowers the teachers and can provide them with greater scope for initiative. So TQM क्या कर रहा है, एक traditional institution की बजाय वो उसको उसके functions को वो उलट कर देता है, मतलब कि एवरीथिंग जो पावर जो हायरार्की के पास फंक्शंस में है, ठीक है, जो लीडर्स के पास है या मिडिल मैनेजर्स के पास है, वो पावर वो डिवाइड कर देता है बिटवीन द स्टाफ, एंड टीचर्स को जो है ना एम्पावरमेंट मिल जाती है कि वो अपने ज़्यादा स्कोप बढ़ा सके, इनिशिएटिव्स जो है ना ज़्यादा ले सके क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के. Now it is for this reason that it is often said of total quality management institutions that they require less management and more leadership. तो इसीलिए ज़्यादातर total quality management के institutions को कहा जाता है कि उनको requirement कम management की और ज़्यादा leadership की ज़रूरत है उनको. Now the role of the leader in developing a quality culture. Now what is the role of the leader in an institution undertaking a total quality initiative? No list of attributes says it all, but there are the major functions that all leaders must undertake. So एक रोल अगर हम देखें एक लीडर का, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन में टोटल क्वालिटी इनिशिएटिव अगर उसने लेना है, ठीक है, सो व्हाट वुड बी द मेजर फंक्शंस जो उस लीडर को ज़रूरी है कि वो अंडरटेक करे. नाउ नंबर 1 वुड बी अ विजन फॉर द इंस्टीट्यूशन. एक इंस्टीट्यूशन के लिए अपने विजन क्रिएट हो, उसके अ क्लियर कमिटमेंट टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ क्लियर कमिटमेंट हो, एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट द क्वालिटी मैसेज को कम्युनिकेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए. मीटिंग कस्टमर नीड्स, ensuring that the voices of customers are heard. So customer की needs को पूरा करना और उनकी demands को मद्देनजर रखना. Leading staff development, स्टाफ की डेवलपमेंट की तरफ चलना. एंड नो ब्लेम कल्चर. मोस्ट क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज एंड नॉट फेलिंग्स ऑफ स्टाफ. और नो ब्लेम कल्चर हो जिसमें स्टाफ को ब्लेम ना किया जाए क्वालिटी कंट्रोल के लिए, एंड मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज के जो फेलियर अगर वो हो रहा है तो वो स्टाफ की फेलियर नहीं है, वो मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज की वजह से फेलियर हो रहे हैं. देन the other role of leader in developing a quality culture would be leading innovation. Then ensuring that organizational structures have clearly defined responsibilities and provide the maximum delegation compatible with accountability. So organizational structures जो है वो clearly defined हो, उनकी responsibilities उनको पता हो, और उनको most accountability they should be compatible with that. A commitment to the removal of artificial barriers, whether they can be organizational or cultural. फिर एक कमिटमेंट होना चाहिए जो बैरियर्स को रिमूव करें, ठीक है, चाहे वो कल्चरल है चाहे ऑर्गेनाइजेशनल है. बिल्डिंग इफेक्टिव टीम्स बिल्ड करना. डेवलपिंग अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म्स फॉर मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएटिंग सक्सेस. फिर ऐसे प्रोसेसेस को डेवलप करना, ठीक है, ऐसे मैकेनिज्म्स को डेवलप करना जिससे जो है मॉनिटरिंग और एवेल्युएटिंग जो है वो सक्सेसफुल हो सके. Now, a key empowering teachers. Now, a key aspect of the leadership role
in education is to empower teachers to give them the maximum opportunity to improve the learning of their students. So educational institutions में key aspect जो है वो education का जो है वो leadership role का क्या है कि वो teachers को empowerment दें, teacher को वो power दें कि वो maximum opportunity हो उनके पास ताकि वो students की learning को improve कर सके, उनकी quality of learning को improve कर सके. Now Stanley Spanbauer, the former president of Fox Valley Technical College in Wisconsin, who took a lead in introducing total quality management into vocational education in the United States, argues that. So Stanley Spanbauer, जो former president थे Fox Valley Technical College, Wisconsin, USA में, उन्होंने introduce किया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वोकेशनल एजुकेशन में यूनाइटेड स्टेट्स में, और उनका पॉइंट ये था कि इन अ क्वालिटी बेस्ड अप्रोच school leadership relies on the empowerment of teachers and others involved in the teaching and learning process. So उनके point of view से teachers को power मिलना ठीक है, और उसी में जो दूसरे teaching and learning process में जो involved हैं उनको लीडरशिप यानी स्कूल लीडरशिप उस चीज़ पर रिलाई करती है कि टीचर्स को पावर हो, और दूसरे लोग जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनको भी टीचर्स शेयर इन डिसीजन मेकिंग एंड अस्यूम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो टीचर्स जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी हिस्सा ले और उनके ऊपर इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. दे आर गिवन मोर पावर टू एक्ट एंड ग्रेटर ऑटोनमी इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे डू, और उनको ज़्यादा पावर मिलती है जिस अपने काम में या जिस तरह वो एक्ट करते हैं, एंड जो कुछ भी वो करेंगे उसमें दे वुड हैव मोर पावर एंड वुड be more responsible for what they do. So Spanbauer, in his A Quality System for Education in 1992, has put forward a plan for leadership to create a new educational environment. So Spanbauer ने main चीज़ A Quality System for Education 1992 में उसने ये बुक लिखी, और उसने एक प्लान बनाया लीडरशिप के लिए ताकि एक नया और बेहतर educational environment create हो सके. Now he argues that educational leaders should guide and assist others to develop a similar set of characteristics. So उनके point of view से educational leaders जो है उनको assist करने के लिए they should develop a similar set of characteristics. So ताकि वो अपने चीज़ें अपनी यानी सिस्टम में improvement लेके आ सकें. Now this encourages shared responsibility and a style that will engender an interactive working environment. So ये shared responsibility है, ठीक है, और ये style जो है जो engender कर सकता है interactive working environment create कर सकता है. He visualizes a leadership style where leaders must walk and talk quality and understand that change happens by degree, not by decree. So एक लीडरशिप का चेंज आना चाहिए, ठीक है, एक स्टाइल उनकी लीडरशिप में चेंज होना चाहिए जिसमें दे मस्ट वॉक एंड टॉक क्वालिटी, यानी उनके चलने और बोलने से क्वालिटी महसूस होनी चाहिए, एंड अंडरस्टैंड दैट द चेंज हैपन्स बाय डिग्री. और ये चीज़ अंडरस्टैंड करना कि चेंज आना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो लीडर्स हैव अ पिवोटल रोल in guiding teachers and administrators to work for and in concert with their client groups. So leaders को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें जिसमें टीचर्स को वो गाइड करें, एडमिनिस्ट्रेटर्स को गाइड कर सकें अपने काम में, और क्लाइंट ग्रुप्स के साथ काम करने के लिए उनको दे शुड mold them according to that. Now Spanbauer's model is one of leadership for empowerment. So Spanbauer का जो मॉडल है वो लीडरशिप दे रहा है empowerment की तरफ. Now his conclusions are: involve teachers and all staff in problem solving activities using basic scientific methods and the principles of statistical quality and process control. So उसने कहा कि टीचर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए और स्टाफ को प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है, और बेसिक साइंटिफिक मेथड्स लेने चाहिए, प्रिंसिपल स्टैटिस्टिकल क्वालिटी के और प्रोसेस कंट्रोल के. Ask them how they think about things and how projects can be handled rather than telling them how they will happen. So बजाय कि आप सिर्फ टीचर्स को
एक चीज़ इन्फॉर्म करें कि जी प्रोसेस इस तरीके से चलना चाहिए या प्रोजेक्ट इस तरीके से आपने मैनेज करना है, एंड जस्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग देम ऑर्डर्स यू नीड टू गेट आइडियाज फ्रॉम देम, और उनसे सोच के जो है वो आइडिया लिया जाए कि उनके हिसाब से वो प्रोजेक्ट किस तरह मूव करना चाहिए. And then share as much management information as possible to help foster their commitment. Then उनके जो है ना ऐसी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर किए जाए ताकि उनकी कमिटमेंट ज़्यादा जो है हो सके. Ask staff which systems and procedures are preventing them from delivering quality for their customers, students, parents and co-workers. उनसे तरीके पूछें कौन से सिस्टम्स कौन से प्रोसीजर्स ऐसी चीज़ में उनके रास्ते में हाइल हो रहे हैं ताकि वो क्वालिटी डिलीवर करने के रास्ते में हाइल हो रहे हैं जो अपने कस्टमर्स या स्टूडेंट्स या को-वर्कर्स या पेरेंट्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं. सो अंडरस्टैंड दैट द डिज़ायर फॉर मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स इज़ नॉट कंपैटिबल विद द टॉप डाउन अप्रोच टू मैनेजमेंट. सो एक चीज़ ये भी अंडरस्टैंड करना है कि डिज़ायर जो है वो मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट जो है टीचर्स की वो कंपैटिबल नहीं है जो टॉप डाउन अप्रोच है जो मैनेजमेंट की उसके साथ. और rejuvenate professional growth by moving responsibility and control for professional development directly to the teachers and technical workers. So आप professional growth के लिए जो है ज़्यादा responsibility and control जो है वो professional development के लिए जो है वो directly teachers को technical workers को दें. Implement systematic and continued communication among everyone involved in the school. और उसमें एक systematic system यानी एक ऐसा create हो जो implement हो कम्युनिकेशन का कि सब में जो सारे इन्वॉल्व हैं वो दे वुड हैव इजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड दे कैन वर्क एज अ टीम. सो डेवलप स्किल्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नेगोशिएशंस व्हाइल डिस्प्लेइंग ग्रेटर टॉलरेंस फॉर एन अप्रिशिएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सो ऐसे स्किल्स डेवलप हो जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, निगोशिएशंस हो, ठीक है, और उनमें ग्रेटर टॉलरेंस ज़्यादा बर्दाश्त हो, ठीक है, फॉर एंड अप्रिशिएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सो बी हेल्पफुल विदाउट हैविंग ऑल द आंसर्स एंड विदाउट बीइंग कंडेस्सेंडिंग. सो हेल्पफुल भी लीडरशिप को होना चाहिए, ठीक है, और बजाय कि उनके पास सारे आंसर्स हो और वो दे वुडंट बी लाइक bending any rules or giving any facilitation to the teachers. Then provide education in quality concepts and subjects such as team building, process management, customer service, communication and leadership. फिर education के में जो है quality concepts जो है वो team building में, process management में, customer service, leadership और communication में इनबिल्ट होनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए उनको. देन मॉडल बाय पर्सनली एग्जिबिटिंग डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेंडिंग टाइम वॉकिंग अराउंड लिसनिंग टू टीचर्स एंड अदर कस्टमर्स. सो उसके बाद मॉडल डेवलप हो, ठीक है, एक जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नज़र आए एक लीडरशिप के कि वो ही शुड गो अबाउट, उनको चलते फिरते अपने टीचर्स की बातें भी सुननी चाहिए, अपने कस्टमर से भी मिलना चाहिए, ठीक है. ही नीड्स टू बी वॉकिंग अराउंड द होल इंस्टीट्यूशन एंड गेनिंग इंफॉर्मेशन और गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैम. And then provide autonomy and allow risk taking while being fair and compassionate. He should be fair and compassionate भी हो लेकिन risk taking भी allow करना चाहिए. Then engage in the delicate balancing act of ensuring quality to external customers, students, parents, taxpayers, while at the same time paying attention to the needs of internal customers, teachers, board members and other co-workers. सो मेजर पॉइंट उनका जो है, उनकी एंगेजमेंट जो है वो इस बैलेंसिंग एक्ट इस तरीके से डेलिकेटली होना चाहिए कि दे शुड बी इंश्योरिंग क्वालिटी अपने एक्सटर्नल कस्टमर्स की तरफ इंश्योर हो, जिनमें स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, पेरेंट्स भी आ जाते हैं, टैक्स पेयर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, वाइल एट द सेम टाइम, और उसके साथ साथ दे शुड बी पेइंग अटेंशन ऑल्सो टू द नीड्स ऑफ द इंटरनल कस्टमर्स, जो उनके टीचर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं और अदर को वर्कर्स. सो लीडर्स नीड टू रियलाइज कि सिर्फ एक्सटर्नल कस्टमर्स को नहीं उन्होंने सेटिस्फाई करना या डील करना, बट अपने इंटरनल कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए. So that's it for today, students. We will continue this further in our next lecture. Thank you.